Assalamu alaikum. Thank you so much everyone for joining. I hope you can see my screen. Okay, so just a minute. Okay. आज का वेबिनार जो है इसका एजेंडा बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है। तो वेबिनार टाइमलाइन बेसिकली इस तरह से होगा कि शुरू में Russell is with us from Taiwan. He will be covering importance of data security and introduction to the new appliance, Synology Active Protect appliance. And then I'll be continuing from Synology ransomware protection. Then we will be having a Q&A session. And then at the end of the webinar, we will be doing a lucky draw and giving away one Synology product. So I would like to introduce you to Russell Shan. He's Sales Manager South Asia from Synology. Russell, over to you. Hi, everyone. My name is Russell Chen. I'm a sales manager from SAARC regions, including Pakistan. So I would like to thank Al Madina to host the webinar today, and I'm really happy to become the speakers of today's webinar. So I will be sharing about the new coming models DP series Active Protect appliance, including the key features. And after that, Mr. Zhang will share about our data protection solutions, including our backup solutions, which is ongoing in the market already. So I'm sharing my screen, and you can let me know if you can see my screen shared. Cool. Okay, so the new model we call the Active Protect appliance. This is only focused on backup solutions, and this is different from the NAS we have in previously, including the operating system will be different, including all the hard drives and SSD will be built in default with the package. So you don't need to deploy the solutions by yourself. Okay, so let me very quick introduce what is Synology. Synology is a NAS brand focused on storage business, but we not only focus on the hardware, but also the solutions on it. And we are trusted by many Fortune 500 companies around the world. If you go to Gartner Peer Insight, you can see 99% of our clients are recommending using Synology to others. If you use Gartner Peer Insight to compare Synology with third-party NAS solutions, for example, QNAP, ASUS or like third-party NAS brand, you can see we score better compared to competitors. Okay, so we all know that data protection is important, not only about the human error, but also about malicious incident. And our data become a target for encrypted, especially for ransomware attack. So what considered as a best practice about data protection solutions, and what's the aspect we need to think about it when we talk about data protection, including whether your data can be recovered and whether your data is durability in case your data is attacked, whether you can keep your backup data, and whether you can manage massive of deployment, including different PCs and virtual machines, and how secured is your system is. Okay, so this is a best practice. We need to consider whether the backup can be conducted quick, whether your backup data can be tested, and also where in case the disaster happen, whether you can restore your data smoothly. And we also need to consider whether your backup data is supported immutable, and also whether you can manage massive data in one dashboard, and in the system level, whether it is secured. So the coming model will be launched, especially tomorrow. Global launch day will be January 8th. So you can find out more details starting from tomorrow, including the official website will be launched on our website. Okay, so the first one will be recoverability. You can see, for example, for third-party solutions, you need to deploy different backup solutions for different backup task, but you can use DP series to backup your virtual machines, including Hyper-V and VMware, servers, including Windows servers and Linux, endpoints, including Mac OS and Windows PC, file server, including Nutanix, NetApp, and Samba file server. From SaaS account, we can support Microsoft 365. They include Teams channel, chat, and also your Exchange Online email.
your OneDrive for Business, and your SharePoint. For database, we can support Oracle and SQL Server. So for the attendees who are familiar with Synergy solution, say, hey, we have Active Backup for Business on Synergy NAS already. So this is new database will be supported from DP series. So global source site deduplication technology will be supported. So which means we will delete duplicate data at the source. So you can see file B and file C are duplicate data, so we don't need to transit, and we don't need to occupy the space on the backup server. So we can reduce the backup time, and we can optimize the backup server's space. You can see for the device A full backup, this is the first device. We took 28 gigabytes of the space, but we only took 443 megabytes of space. So if you deploy mass data, for example, 1,000 of PCs, we can save up to 99% of your data by the global source site deduplication technology. So 50% of storage space can be saved by dedupe technologies. And after backup to your DB series, you need to check whether the backup data is complete. We support data self-healing, including we will repair damaged hard drive and corrupted static data automatically. We can do backup verification when needed. Moreover, we can restore the virtual machines on the DP series built-in hypervisors for testing. So for audit as well, for example, you have external auditors, they want to see you have your backup data and your backup data is restorable. You can use DP series built-in hypervisors environment to test the recovery. Okay, so for restoration, we have different ways for restoration. We do support file level restorations. For example, we can enable employees to restore their files by themselves to reduce the workload of IT managers. So it's easier for IT managers to enable this feature so they can restore the data from their PC in previous versions. And we do support bare metal restoration, including your system level applications and data. And also we do support instant restoration between different hypervisors, Hyper-V to VMware, VMware to built-in hypervisor on DB series is all supported by instant restoration. Okay, so after we confirmed we can support all the features about recoverability, we also need to discuss about durability about your backup data. So offsite backup, I believe most of you guys already know what is offsite backup and how it is important to have one offsite backup to fulfill the golden backup 3-2-1 rule. But we also need to have immutable backup on the offsite. So you can see from here, configure backup copies, which means you backup your data from PC to the appliance. You can have the copy from the appliance to another backup appliance. So to make sure the offsite backup is supported, we can also support different NAS model as a thought. For example, you have massive backup data to store for long term, for maybe more than 100 days of versions. You can store on bigger model like HD6500 or SA series. We can also support it on cloud as well. So not only the client side can be encrypted, but also we support worm technology. So this is write once, read many, write once, read many. So your backup data will be immutable during the retention days. So even though your production site is compromised by ransomware attack, your backup server is compromised by ransomware attack, the hackers cannot encrypt, cannot delete, cannot edit because the worm technology. So we can design different backup plan. For plan A is like, for example, golden plan. For important data, for plan B, we can for different retention policy for different immutable backup versions. So during these days, all the backup data cannot be deleted, encrypt, edit. So we can ensure even we are attacked, we can still get a backup data back. So after we check our data have offsite and immutable, we also need to
ensure it is easy to manage, especially for enterprise level backup solutions. So this is common to see. You have different branch office across the country, maybe in Karachi, maybe in different cities, tier 2, tier 3 cities in Pakistan. You can deploy one backup server in different branch, and you can assign one DP series as a management server. So you can manage all the backup servers and all the backup tasks by one management server. So it is very easy for IT managers, especially for enterprise level IT managers, to manage all the devices and tasks. So we can support up to 2.5K backup servers and up to 150K backup source, which is managed by one cluster and one dashboard. So you can design different backup plans. So the backup plans will be the setup for the backup task, including frequency, retention policy, whether you have offsite backup, whether it is immutable, and whether you have like other advanced backup settings. And you can apply the plan to multiple devices, including virtual machines, physical servers, file server, PC, and Oracle SQL servers. So you don't need to manage different plan for different devices or systems. You can manage one or two or three plans for all the devices or systems. So it will be very easy for IT managers to deploy different plans. With your organization grow, you will have more virtual machines, you will have more PCs, you will have more accounts within your cloud services. You don't need to manually add on these accounts or devices to the backup task. They will automatically identify and also included in the backup plans by default. For example, for cloud service, they will be based on your group. If you add on new users in the group, we will automatically apply the plan to the users. Okay, so the last one will be security. So I have the backup data on my appliance, but I don't know how secured is the backup appliance. So let me dive into the topic. We need to check different level of security in different ways, including whether allowed person can access, whether only allowed persons can access the DB series, whether only allowed devices can access the devices, and whether only allowed time can be backup task conduct. So this is different levels we need to ensure the backup devices is secured. So the first one will be the user's delegation. We can set up different access control, including account and password. Of course, we can integrate it with your domain servers. And also we supported multi-factor or two-factor verification, authentication if you need. Single sign-on supported SAML 2.0 if needed. So for big and organizations like enterprise, they do have IT managers for infra, they do have IT managers for backup task, they do have employees who want to restore the data back by themselves, and they have auditors, external or internal auditors to audit all the backup tasks. We can set up a system level management for infra IT managers, backup tasks including conduct the backup and restoration for backup team. We can enable self-services restoration for file level for the employees and also for the auditors. We can enable monitoring backup task, including whether the restoration is complete or not for the auditors. So we can ensure the least privilege principle. The person only got the permission they need. Second, we need to ensure only the right devices can access the DP series. So we can only let the whitelist devices can access the DP series. We can use specific IP address or subnet or IP range if needed. Okay, so last one will be air gap. So this is your production side. You will back up all the data to your DP series, but you don't need to have connection all the time between your production site and your DP series. You need to have air gap between your production site and your backup servers, because even though your production site is compromised by ransomware attack or
attacked by hackers, you can still make sure your backup server is complete without attacking, and you can restore your data back. So we have three ways. We can do deny all connections between the time. We can disable the networking interface cards, and we can even power off the DP series whenever it is not conduct a backup task. So we will ensure only when we are backing up the data from the production site to the DP series, we will have connection. Otherwise, we'll be have air gap to protect your data in your backup servers. Okay, so this is the four aspect about how DP series can be the best practice and fulfill your data protection plan. And you might start to wonder what is the hardware spec and what's the model we can choose from, what's the pricing and what's the license cost, and what's the pricing comparisons compared to third party like Fin or others. So I'm glad to share that we will have another webinar only focus on DP series on January 22nd. And I will share the webinar link to El Madina so they can share to all the attendees after the meetings. So this is only the introduction about DP series today, and we will talk more about DP series on January 22nd. So please schedule a time to join the webinar. So this is all my sessions, and I will pass my time back to Mr. Zen. Thank you. Thank you so much, Russell, for explaining the working of DP series. Let me share my screen and then continue the webinar from data security onwards. Please let me know if you can see my screen. Okay. So रसल ने हमारे साथ जो शेयर किया है वो बेसिकली एक्टिव प्रोटेक्ट अप्लायंस है जो कि Synology ने डिज़ाइन किया है बैकअप के लिए स्पेसिफिकली। और उसके बाद हम देख लेंगे कि इस रैंसमवेयर प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है और ऑर्गेनाइजेशंस को इनके ना होने से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस को और उसके मेन कॉजेज कुछ यहाँ पे हैं। आईटी सिस्टम फेलियर, ह्यूमन एरर, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, डेटा लॉस फ्रॉम फेल्ड बैकअप रिस्टोर, नेचुरल और मेंडेन डिजास्टर्स। अच्छा, इसके अंदर से क्योंकि बिजनेसेस सारे तकरीबन आईटी के ऊपर रन कर रहे होते हैं और आईटी के ना होने की वजह से लेट मी चेक। ओके, आईटी के अगर प्लान्स और उसके प्रोसीजर सारे इन प्लेस नहीं है जिसकी वजह से आपके डिजास्टर हो रहे हैं और आपका जो अवेलेबिलिटी है वो इफेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी एक हैवी लॉस होता है बिजनेस को जिसको केटर करना और उसको प्लान करना ज़रूरी है। तो सिर्फ डेटा का बैकअप होना कोई आपका 100% अश्योरिटी नहीं है कि डिजास्टर के टाइम आप सेफ हैं। वो बैकअप रिकवरेबल है या वो बैकअप किसी मजीद एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एरर से सेफ है, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बैकअप इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपके सारे लाइन ऑफ डिफेंसेस इन प्लेस हैं, आपने फायर वॉल्स डिप्लॉय करी हुई हैं, आपने प्रिवेंशन और डिटेक्शन सिस्टम्स डिप्लॉय करे हुए हैं, सीम डिप्लॉय करे हुए हैं, लेकिन डिजास्टर किसी ना किसी तरह से हो सकता है। कोई इंटरनल थ्रेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल रैंसम अटैक हो, कुछ भी हो। बैकअप इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी पार्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस with a proper disaster recovery plan in place। तो इसके अंदर कुछ रीजंस हैं जो कि बैकअप प्रॉपर ना होने की वजूहत बनते हैं। एक तो हार्डवेयर कॉस्ट है, दूसरा सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, मेंटेनेंस फीस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ उठा के लगा लेना पॉसिबल नहीं होता। प्रॉपर प्लान किया जाता है कि हार्डवेयर कॉस्ट क्या है, उसका लाइसेंसिंग, क्योंकि तकरीबन 75% जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनके कोई पर्टिकुलर लाइसेंस होते हैं। आइदर इट्स वन टाइम और इट्स perpetual, you need to like recover every annually और monthly basis। तो उसको देखना भी ज़रूरी होता है, उसकी पूरी कैलकुलेशन कि आप 2 साल के लिए 3 साल के लिए जो प्लान कर रहे हैं उसका क्या कॉस्ट बन रहा है, फिर उसकी मेंटेनेंस अगर वो फेल हो जाता है या उसको हमें अपग्रेड करना है, मूव करना है दूसरे सिस्टम पे, तो वो क्या टोटल कॉस्टिंग आती है। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा है इनसफिशिएंट आईटी सपोर्ट। हर बिजनेस के अंदर इनसफिशिएंट आईटी सफिशिएंट आईटी सपोर्ट का होना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लाजमी उनके पास आईटी रिसोर्स हो। ये भी हो सकता है कि आईटी के आपके पास है लेकिन उनको प्रॉपर डेटा बैकअप प्लान्स नहीं पता। दे कुड बी गुड एट नेटवर्किंग, दे कुड बी गुड एट सर्वर मेंटेनेंस,
but proper backup knowledge should be there. Even if you lack it, you need to find a solution. Uncentralized management, अगर ये मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल साइट्स हैं, उनके ऊपर मैंने सारे डेटा प्रॉपर इंश्योर करने हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और एक BYOD जो कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस ट्रेंड्स हैं, जो कि ग्लोबली इमर्ज करते जा रहे हैं रिमोट एम्प्लॉयज़ के, उनके पास डेटा सेफली किस तरह से एक्सेसिबल हो, जो कि रिकवरेबल भी हो, वो सारी चीज़ें, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है बिजनेसेस के। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो कि सिनोलॉजी सोल्यूशन देता है उसका, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उसका। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस फीस है, मतलब कोई लाइसेंस है ही नहीं, आपने वन टाइम हार्डवेयर परचेज कर लिया, उसके बाद कोई रिकरिंग बैकअप के लिए या कोई अपनी एग्जिस्टिंग स्टोरेज को मैनेज करने के लिए कोई आपको लाइसेंस परचेज नहीं करना। इवन वन टाइम भी कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, कोई एग्जिस्ट नहीं करता लाइसेंस बैकअप की जब हम बात करते हैं नए सॉल्यूशंस के अंदर। फिर इजी डिप्लॉयमेंट है, कोई आपको क्रिटिकल इसके अंदर जाके कोडिंग नहीं करनी, कोई आपकी CLI पे काम नहीं करना, सिंपली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इंस्टॉलेशन से लेकर बैकअप कंप्लीट रिस्टोरेशन तक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो GUI पे बेस्ड है, और ये बहुत इजी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और फिर एक ही डिवाइस है जो कि आपकी सारी रिसोर्सेज, चाहे वो PCs हों, चाहे वो बैकअप के सर्वर्स हों, चाहे वो वर्चुअल मशीन्स हों, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी बैक्ड अप इन अ सिंगल सिनोलॉजी मशीन। अच्छा जी, फिर हमारे पास डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज किस तरह के होते हैं, जो जो हमारे पास डेटा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस किस तरीके से हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एंड पॉइंट्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं PC या लैपटॉप या फिर सर्वर्स। फिर हमारे पास इंटरप्राइज लेवल पे या फिर लार्ज बिजनेसेस के अंदर वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास एक हाइपरवाइजर लगा है, उसमें मल्टीपल VMs रन हो रही हैं। फिर हमारे पास अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर SaaS प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए और शेयरिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 या गूगल वर्क स्पेस। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को किस तरह से सेंट्रली मैनेज किया जाए, वो हम देख लेते हैं। Synology एक ऑप्शन देता है एक्टिव बैकअप फॉर बिजनेस, विच इज बिल्ट इन एप्लीकेशन, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम Synology पैकेज सेंटर। It is pre-built. You don't need any license. You don't need any extra pay for this application. ये NAS के अंदर मौजूद होती है, आप इसको इंस्टॉल करें और इससे फिर आप फर्दर ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो विंडोज PC, लिनक्स PCs हों, फिजिकल सर्वर्स हैं, फाइल शेयरिंग है, जो व्हाट्सएवर, यू कैन बैकअप फ्रॉम दिस सिंगल एप्लीकेशन। ये इसका थोड़ा सा इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा मेरे राइट साइड पे। ओवरव्यू के अंदर हमारे पास Synology NAS है, आपके पास मल्टीपल Synology NAS लगे हुए हैं, आप उनको बैकअप कर सकते हैं। PCs हैं, मैक डिवाइसेस हैं, फिजिकल सर्वर के अंदर लिनक्स सर्वर्स हैं और विंडोज सर्वर्स हैं। फाइल सर्वर्स के अंदर आपके पास SMB के ऊपर अगर फाइल शेयरिंग चल रही है, कोई एक सेंट्रल सर्वर आपने बनाया हुआ है, उसको बैकअप कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स के अंदर आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाइपरवाइजर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी और VMware vSphere या फिर ESXi, आप इनको एक दफ़ा लॉगिन करके कंबाइन कर लें और उसमें जितनी VMs होस्ट रही में आपके सामने लिस्ट हो जाएंगी। आपने जिस जिस VM का बैकअप लेना है उसको सेलेक्ट करके उसका टास्क स्केड्यूल करके ऑटोमेटिक या फिर पर्टिकुलर मैनुअल बैकअप आप सेट कर सकते हैं, और वो पूरी की पूरी मशीन आपकी बैकअप हो जाएंगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है SaaS, एक्टिव बैकअप फॉर SaaS, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्कस्पेस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर 365 यूज़ होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट आपने सिर्फ लॉगिन करना है, उसके अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने कैलेंडर्स हैं, मेल चल रही हैं आपके पास, जितनी यूजर्स की जितनी साइट है, जितनी टीम्स आपके पास चल रही हैं, सारी की सारी आप सिंगल NAS के ऊपर बैकअप कर सकते हैं। ये सारी ना भी करनी, कोई एक बंदे की ईमेल करनी है, आप उसको सेलेक्ट करके टास्क उस बंदे की ईमेल का आप सेलेक्ट करके उसको बैकअप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस सीरीज के और ऑनवर्ड्स हर NAS के अंदर बिल्ट इन मिल जाते हैं। और ये बहुत बहुत ही रिलायबल सोल्यूशन है बिजनेस के बैकअप्स के लिए बेसिकली। अच्छा, डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज के अंदर जो मैंने बताया कि एक कंपनी के अंदर जितने मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं वो सब एक ही NAS में स्टोर हो सकते हैं, तो वो हमने देख लिया। इज योर कंपनी डेटा फुली प्रोटेक्टेड? नॉट येट, एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इज नीडेड। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सिर्फ बैकअप होना ज़रूरी नहीं है, हमें इंश्योर करना पड़ता है कि वो बैकअप रैंसम प्रोटेक्टेड है। अगर रैंसम अटैक कोई होता है तो वो डेटा बैकअप जो कि मैंने रखा हुआ ही किसी डिजास्टर के लिए था, पता लगा वो भी इफेक्ट हो गया, अब रिकवरी के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो बैकअप्स मैंने रखे हुए थे वो भी इफेक्ट हो चुके। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन मिलता है? जैसे ही हमने देखा है बैकअप योर डेटा और फेस द कॉन्सिक्वेंस, इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी बड़ी लार्ज एंटरप्राइजेस, जिनके पास ये प्लान नहीं थे, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बेयर किए हैं। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास गोल्डन रूल क्या है, जो कि ग्लोबली हमें एक उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ता है बैकअप का। वो है 3-2-1 बैकअप स्ट्रेटजी। अब इसको बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे जानते भी हो, लेकिन मैं शॉर्टली इसको कवर कर दूं। आपके पास एटलीस्ट 3 कॉपीज डेटा की होनी चाहिए, जिसमें से दो जो हैं वो डिफरेंट स्टोरेज मीडियम पे हों।
जैसे कि अगर आपने नेस लगाया हुआ है और 3 कॉपीज नेस में ही रखी हुई हैं, तो हो सकता है कोई फिजिकल डिजास्टर हो, कोई कुछ भी हो जाए, कोई वाटर डैमेज हो, कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, तो आपका पूरा का पूरा नेस ही इफेक्ट हो गया ना, फिर तो आपके पास कोई डेटा भी नहीं हो, क्योंकि तीनों के तीनों डेटा कॉपीज आपने उसी में रखी हुई थी। तो हमें इसके लिए कोई 2 स्टोरेज मीडियम रखने पड़ते हैं। और इसमें रिकमेंडेड ये है कि आप जो है वो एक लोकल उस पोजीशन पे रखें, दूसरा थोड़ा सा आप फार अवे रखें, कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो वो दोनों एट अ टाइम इफेक्ट होने के उनके चांसेस बहुत कम हो। स्टोरेज मीडियम्स 2 होने चाहिए, जैसे आप एक क्लाउड कंसिडर कर सकते हैं, या एक अपनी ऑफ साइट बैकअप कोई दूसरा आपके ऑफिस लोकेशन है वहाँ पे कर सकते हैं। और एक कॉपी जो है वो ऑफ साइट हो, यानी कि वो सारा पूरा एक कंबाइन होकर एक वो स्ट्रेटेजी बनती है कि 3 कॉपीज हैं, 2 डिफरेंट मीडियम्स में है, और एक उसमें से ऑफ साइट है। अच्छा, सिनोलॉजी का जो एक्टिव प्रोटेक्ट अप्लायंस है, जो रसेल ने अभी पूरा ओवरव्यू दिया था, उसके अंदर हमारे पास एक और स्ट्रेटेजी है जो कि मजीद सेफर है, गिवन के हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस आईटी के, और जो जिस तरह एडवांसमेंट होती जा रही है, तो जो थ्रेट एजेंट्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो भी बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। तो इसको मजीद सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं 3211 बैकअप स्ट्रेटेजी। 3211 बैकअप में क्या होता है कि 3 to 1 बैकअप तो यहाँ तक तो सेम फॉलो हो रहा है, फिर इसके बाद जो एक और वन आ रहा है वो होता है कि आपके पास एक जो कॉपी है वो इम्यूटेबल हो, यानी कि उसको आप सिर्फ रीड कर सकें या रीस्टोर कर सकें, उसको मजीद एडिट या फिर आप उसको इफेक्ट ना कर सकें। वो वो परमिशन ही ना हो, वो आपको अलाउ ही ना करे कि उसको आप चेंज कर सके। उसका जो हैश फंक्शन आ रहा है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। और जो जीरो है, जीरो रिप्रेजेंट कि आपके पास जीरो फेलियर रिस्टोरेशन टास्क हो, यानी कि आप इसको जितनी दफ़ा भी वो इतना केपेबल हो कि वो जो बैकअप बन रहा है आपका, वो कंटिन्यूस टेस्ट भी होता रहे कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो ये उसमें रिस्टोरेबल है भी या नहीं। तो ये कंप्लीट बैकअप स्ट्रेटेजी है जो कि अभी किसी हद तक सेफ कंसिडर की जाती है। फिर आपके पास एक लेयर्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो कि सिनर्जी के थ्रू आप कर सकते हैं, कि सिनर्जी का आपने एक पॉइंट पे जो अपने बैकअप अभी डिस्कस किया वो आपने ले लिया। फिर सेकंड पॉइंट पे आपके पास कम से कम इम्यूटेबल बैकअप जो कि स्नैपशॉट रेप्लिकेशन के थ्रू होता है। अभी हम इसको लाइव सिनेरियो में टेस्ट भी कर लेंगे। और फिर हाइपर बैकअप एक और एप्लीकेशन है जो कि आपको अलाउ करती है प्राइमरी कॉपीज को, प्राइमरी डेटा को, बैकअप को आप सिनर्जी दूसरे किसी सिनर्जी नेस में, किसी रिमोट सर्वर के अंदर, सिनर्जी C2 जो कि क्लाउड है सिनर्जी का अपना, उसके अंदर, या किसी पब्लिक क्लाउड के अंदर जिसके आपके पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो सकती है, उसमें आप एज ए सेकंड लेयर या सेकंड कॉपी ऑफ द डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट मीडियम्स भी हो जाएंगे, और ऑफ साइड भी हो जाएगा, और आपका 3 कॉपीज भी बन जाएगी, 2 इसमें है और 2 जो है वो ऑफ साइड आपकी रखी हुई है। अच्छा जी, स्नैपशॉट रेप्लिकेशन हम देख रहे थे। स्नैपशॉट रेप्लिकेशन बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि रैंसमवेयर प्रोटेक्शन आपको देती है। फर्स्ट कर लें, मेरे नेस के अंदर डेटा रखा हुआ है, और उस डेटा के ऊपर मुझे ऐसी सिक्योरिटी अप्लाई करनी है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है, अगर वो रैंसम से अफेक्ट हो भी जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर मैंने डेटा की कॉपी रखी हुई है ना, ये इम्यूटेबल हो। तो उस चीज़ के लिए हम ये सिनर्जी स्नैपशॉट रेप्लिकेशन देखते हैं। टास्क स्नैपशॉट अप टू एवरी 5 मिनट्स फॉर शेयर्ड फोल्डर्स, क्विकली रिस्टोर स्नैपशॉट ऑफ शेयर फोल्डर ऑफ LUNs इन सेकेंड्स। अच्छा, ये 11:05 पे मैंने अगर बैकअप लिया है, और उसके बाद फ़ौरन मेरे पास रैंसम अटैक हो गया और मेरा डेटा एन्क्रिप्ट हो गया, तो मैं उसके बाद फ़ौरन जो है वो स्नैपशॉट अपना रिकवर कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये स्नैपशॉट रेप्लिकेशन वो है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम इसको ज़रा लाइव टेस्ट भी कर लेते हैं। रेप्लिकेट स्नैपशॉट फॉर अनदर नेस फॉर, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि सेम नेस के अंदर आप स्नैपशॉट लें, आप किसी दूसरे सिनोलॉजी पे भी स्नैपशॉट ले सकते हैं और वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। राइट। अच्छा जी, अब मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। जस्ट अ मिनट। मेरी स्क्रीन पे आपको नेस ओपन हुआ नज़र आ रहा है? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, स्नैपशॉट हम पहले ही देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर डेटा किस तरह सेट किया हुआ है। हमने यहाँ कुछ टेस्टिंग फोल्डर्स बनाए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, दिस इज़ द नेस, राइट। हमने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग फोल्डर्स बनाए हुए हैं। इसमें प्रोडक्शन का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने मजीद सब फोल्डर्स बनाए हुए हैं, डेटा 1 और डेटा 2। अब डेटा 1 के अंदर फर्स्ट कर लें, हमारे पास यहाँ 2 पिक्चर्स हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस वेबिनार और वेबिनार बैकग्राउंड, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसका स्नैपशॉट ले रहे हैं। स्नैपशॉट एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे इस प्रोडक्शन के फोल्डर का स्नैपशॉट स्केजुअल किया हुआ है, जो कि डेली तकरीबन 1 बजे, जो कि 24 आवर में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें एक इम्यूटेबल बैकअप ले लेता है, और मैं 2 वर्जन उसके रिटेन कर रहा हूँ। और एडवांस में मैंने उसको विजिबल किया हुआ है। मैं अगर चाहूँ उसको इनविजिबल करना, तो मैं इनविजिबल भी कर सकता हूँ, मुझे फोल्डर के अंदर शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास स्नैपशॉट शो हो रहा है, ये स्नैपशॉट शो हो रहा है, तो अगर मैं उसको इनविजिबल कर देता हूँ तो वो यहाँ पे विजिबल भी नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा जी, अब फर्ज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक मिमिक करते हैं कि हमारे पास अटैक हुआ है, और ये डेटा हमारे पास जो है वो डिलीट कर देते हैं इसको, डिलीट, और यहाँ पे भी इसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट हो जाना, अब या फिर रैंसम इफेक्ट हो जाना कि वो इनक्रिप्टेड हो गया, मकसद ये है कि वो यूजेबल नहीं है, मुझे यूज़ करना है, अब वो प्रेजेंट है भी लेकिन यूजेबल नहीं है, तो बात ये होती है कि अवेलेबिलिटी इफेक्ट हुई है। अच्छा जी, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये डेटा टू में से चला गया डेटा। अब हम आ जाते हैं रिकवरी पे। रिकवरी पे हमारे पास प्रोडक्शन वाला फोल्डर नज़र आ रहा है, इसको रिकवर पे क्लिक करेंगे तो वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि लॉक है फोल्डर और इम्यूटेबल है, यानी कि ये स्नैपशॉट इटसेल्फ एडिटेबल नहीं है। आप किसी भी तरह से, चाहे CLI से करें, किसी से भी करें, उसको एडिट नहीं कर सकते। फर्स्ट कर लें, मुझे मेरे पास ये दो वर्जन आ रहे हैं, एक 2:02 का है और एक 2 बज के दो एक से एक 2 बजे का है। 2 मिनट के डिफरेंस से बैकअप मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट लिया था। टेस्ट टू के अंदर हम ब्राउज कर लेते हैं कि इसको स्नैपशॉट को खोलो और डेटा टू के अंदर जो मेरा डेटा रखा हुआ था उसको आप रीस्टोर कर लो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली चाहूँ तो एक फाइल को भी रीस्टोर कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो रीस्टोर टू द स्नैपशॉट और टेक अ स्नैपशॉट बिफोर रिस्टोरिंग, रिस्टोर द सेटिंग्स। ओके, ओके, वो प्रोसेस करे और मेरा स्नैपशॉट जो है वापस रिस्टोर कर देगा, और मैं जाऊँगा वहाँ पे तो मेरा डेटा वहाँ पे रखा हुआ होगा। अभी जैसे ही कंप्लीट होता है हम वहाँ पे देख लेंगे प्रोडक्शन के अंदर डेटा टू, और ये मेरा प्रोसेस हो रहा है। ओके, सीम्स लाइक इट इज़ डन, लेट्स चेक, रिफ्रेश, और ये डेटा मेरा वापस आ गया, वही डेटा टू में डेटा मेरा वापस आ चुका है। तो आपके पास ये चीज़ें इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर अगर कोई इफेक्ट हो भी जाता है, डेटा डिलीट हो जाए, या कोई फर्स्ट करने चले रैंसम अटैक नहीं भी हुआ, आपने बहुत अच्छी फायरवॉल लगाई हुई, सब लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद आपका कोई इंटरनल थ्रेट है, कोई बंदा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना चाह रहा है, या फिर कुछ भी एक मिस कौन वो हो गया, आपका कोई डिजास्टर हो गया, इंटरनल कम्युनिकेशन खराब हो गई है, तो उसने बदला लेने के लिए आपसे वो जो है डेटा खराब कर दिया, फिर क्या करेंगे? क्योंकि उसको तो देना है ना, आपने जो भी आपने उसको एक्सेस देना है वो तो देना है, उसने काम करना है। तो इंटरनल थ्रेड भी वो हो सकते हैं रीजन ऑफ लॉस, तो उनको भी हमें जो है वो प्लान करना और उसमें के मुताबिक चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बैक टू द स्लाइड्स। हमारे पास फिर हाइपर बैकअप है, जो कि मैंने बताया कि आपके पास एक एप्लीकेशन है जो कि एग्जिस्टिंग बैकअप्स को फर्दर पुश कर सकती है दूसरी साइट्स के ऊपर, जिसमें आप गूगल ड्राइव कंसिडर कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंसिडर कर लें, ड्रॉप बॉक्स है या अमेजोन S3 है, उसके ऊपर आप डेटा को पुश कर सकते हैं। और इवन आप सिनोलॉजी का क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक आइडियल सोल्यूशन है सिनोलॉजी के नेस के लिए। जो आप अपना सारा फोल्डर हो, सिस्टम सेटिंग्स हो और पैकेजेस हैं, आपके एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी एग्जैक्ट पूरा नेस उठा के दूसरी साइड पे आप वो कर सकते हैं। अच्छा, synology बैकअप सॉल्यूशन क्यों चूज करें भाई, मार्केट में इतने सारे हैं, ये कि यही क्यों, synology क्यों लें, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो कंपेटेबिलिटी, कैपेसिटी और कॉस्ट है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि स्टोरेज किस तरह से हमारा सेव होता है। ग्लोबल डी डुप्लीकेशन synology ऑफर करता है जब हम बैकअप की बात करते हैं, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास PC है, सर्वर है और दूसरा कोई हो सकता है बैकअप रिसोर्स, वो आप बैकअप कर रहे हैं सेम नेस के ऊपर, क्रॉस डिवाइसेस डिफरेंट सर्वर से आ रहे हैं। तो जो ग्लोबल डी डुप्लीकेशन है, आपके डेटा जब एक नेस के अंदर सेव हो रहा है तो वहाँ पर डी डुप्लीकेट होकर सेव होगा। उसके अंदर वो ऐसा नहीं है कि अगर एक से लेके 10 तक डेटा हम यहाँ से उठा रहे हैं, 1 से 10 तक यहाँ से उठा रहे हैं, तो वो यहाँ पे 1 से 30 बन जाएगा, वो 1 से 10 तक ही रहेगा। जो भी डुप्लीकेट डेटा है वो उसको फिल्टर आउट करके और एग्जैक्ट सिंगल कॉपी जो है वो सेव करेगा। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन साइड से फर्ज कर लें, हमारे पास एक बैकअप आ रहा है 100% का, और दोबारा इंक्रीमेंट हो रहा है 1 GB का। तो ऐसा नहीं है कि वो 110 GB दोबारा या फिर 11 GB दोबारा जो है वो करेगा, वो सिंपली पुराना जो डेटा ऑलरेडी मौजूद है उसको रहने देगा, और जो सिर्फ चेंज हुआ है ना, अब 1 GB का चेंज हुआ है तो वो इंक्रीमेंटल बैकअप उसमें कर लेगा। तो इस तरह से डेटा स्टोरेज जो है हमारी बहुत ज़्यादा सेव हो रही होती है। इसको चेंज ब्लॉक ट्रैकिंग के थ्रू, ये टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो है वो ब्लॉक ट्रैक करता है कि ये न्यू ब्लॉक है, ये एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, तो उसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक होते हैं उसको बैकअप कर लेता है। अच्छा, Synology एक्टिव बैकअप फॉर बिजनेस, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी लेते हैं तो उसके अंदर लाइसेंस हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। इनिशियल हो सकता है आप कंपेयर करें तो आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है आपकी जो वर्किंग है हार्डवेयर के साथ वो तकरीबन इसमें कोई $500 की आ रही हो, और इसके अंदर आपकी कोई $550 आ रही हो। लेकिन अगर 2 साल 3 साल का हम वर्किंग निकालते हैं तो जो लाइसेंस कॉस्ट है हो सकता है वो बढ़ के हमारी $1100 2 साल की कॉस्ट, या $1500 दे रही हो, और यहाँ पे हमारी वो कॉस्ट रिमेन वही रहेगी, $500 जो हम प्लान कर रहे हैं। हाइपोथेटिकली मैं एक सोल्यूशन की बात करूँ, अगर वो इतना कॉस्ट करता है तो। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट बैकअप प्लान है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन की सारी बैकअप्स भी हो रहे हैं नेस के अंदर, और उसके बाद हमारे जो सेस हैं, गूगल वर्क स्पेस है या माइक्रोसॉफ्ट 365 है, वो बैकअप हो रहा है। फिर लेयरिंग हमारी उसी सिनोलॉजी से आगे दूसरी लोकेशंस पे हम कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक क्लाउड है, चाहे वो कोई रिमोट सर्वर है, चाहे वो हाइपर बैकअप है, या इवन कोई दूसरा सिनोलॉजी नेस हमारे पास है, तो हम उस पर स्नैपशॉट एप्लीकेशन जो कि एक इम्यूटेबल बैकअप है वो भी पुश कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो था वर्कफ्लो।
Thank you so much for everyone for joining and sparing your precious time for today's webinar. I'll see you in the next one, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.